السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر الکوان یوٹیوب چینل. میں کچھ پرانی ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو بڑی عجیب اس میں کمپیریزنس مجھے سامنے آ رہی ہیں. یہ شریف خاندان کی ایک عجیب پرابلم ہے. جب سے پاکستان کی سیاست میں آئی ہیں تقریباً 3-3.5 دہائیوں پہلے، تو تب سے جیسے اس ملک میں ایک بھونچال آ گیا ہے. پہلے انہوں نے فیڈریشن کی مخالفت کی. آپ کو یاد ہے نواز شریف نے پنجاب میں بے نظیر کو ہرانے کے لیے نعرہ مارا تھا، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ. اور اس سے کتنا زیادہ نقصان ہو گیا تھا فیڈریشن کو کہ سندھ میں سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں، بلوچستان میں آواز آنا شروع ہو گئی اور جگہوں پہ بھی. اور یہ اصل بیج اس کا بویا تھا میاں نواز شریف نے. یہ چاہتے ہیں جب یہ اقتدار میں ہو تو ان سے کوئی سوال ہی نہ پوچھے، ان کو ہر قسم کی لوٹ مار کرنے دو، ہر قسم کی چور بازاری کرنے دو، ہر قسم کی مفاد پرستوں کو اپنے ساتھ ملا کر ملک کو مزید نقصان پہنچانے دو. اور جب یہ اپوزیشن میں ہو تو یہ بار بار سوال پوچھیں کہ مجھے کیوں نکالا. اور یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کسی اور کو بھی ووٹ پڑ سکتا ہے ان کے خلاف. یہ ان کی چوریاں جو ہیں وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتی، ان کی 2 نمبریاں جو ہیں وہ پتہ نہیں چلتی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی عوام نے کسی جماعت کو اوپر نیچے 2 دفعہ نہیں حکومت دی. میاں صاحب کو دی. آپ جب بھی دیکھیں ان کو کیا ہوا کہ 2 دفعہ ووٹ لیا اور 2 دفعہ حکومت ان کو مل گئی. عوام نے کبھی ایک پارٹی کو فوری طور پہ دوسری بار حکومتیں دی، ان کو دی. لیکن ان کو جتنی مرضی حکومت مل جائے، یہ 5 سال گزارنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہمیں کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. پوری دنیا میں لوگ نکلتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ چپ ہو کے الیکشن کا رزلٹس مانتے ہیں، لیکن یہاں پہ رزلٹ وہی ہوگا جو ان کو قابل قبول ہوگا. اس الیکشن میں بھی آپ کو یاد ہوگا جو پچھلا الیکشن تھا جس میں میاں صاحب کی حکومت بنی تھی، کہ یہ شام کو ہی آ گئے ٹیلی ویژن پہ اور انہوں نے آ کے کہہ دیا مجھے اتنی سیٹیں دو گے تو میں حکومت کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا. اور رات کو رزلٹس مینیپولیٹ ہونا شروع ہو گئے. اب جھوٹ بولتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں. پھر اتنی پریکٹس ہو گئی ہے جھوٹ بولنے کی کہ وہ ایک عادت بن گئی ہے، ایک وہ جو ہے پیتھولوجی میں آ گیا ان کی. لیکن پرواہ ان کو ہے نہیں. یہ نسلی مداح جو ہے نا وہ ان کی ایک فوج ان کے پاس ہے، فوج ظفر موج، چاہے وہ عام عوام ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ کچھ ہمارے پیشے کے لوگ ہوں اور لوگ ہوں، وہ ان کے ساتھ ٹکے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. کسی کو کوئی فائدہ ہے، کسی کو کوئی فائدہ ہے. اور وہ ہر وقت سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے پہ تلے رہتے ہیں. ہر وقت میاں صاحب کی بات کو پروپیگیٹ کرتے رہتے ہیں. اور جو جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، خاص طور نوجوانوں کو، ان کے مائنڈ کو کنفیوز کرتے ہیں، ان کو پولیوٹ کرتے ہیں. میں آپ کو مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یاد ہے آپ کو وہ انٹرویو، سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میں نے چلائی تھی. اس وقت دنیا ٹیلی ویژن پہ ہوتا تھا اور میں نے نیلسن اور نیسکول، یہ کمپنیاں جن کا اب لوگوں نے پینما میں آ کے نام سنا، ان کے نام میں نے اس وقت لیے تھے. اب ہارٹ ٹاک میں ایک انٹرویو ہوا، نہیں میں اسحاق ڈار صاحب کی بات نہیں کر رہا، میاں صاحب کے چھوٹے بیٹے کا اور مریم نواز کے پیارے بھائی کا انٹرویو ہوا ہارٹ ٹاک پہ. اور ہارٹ ٹاک میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں جن فلیٹس میں رہتا ہوں مجھے نہیں پتا کس کی ملکیت ہے. میں جن فلیٹس میں رہتا ہوں وہ تو کرائے کے ہیں. میں جن فلیٹس میں رہتا ہوں ان کا کرایہ تو پاکستان میرے والد کا بزنس دیتا ہے، مجھے نہیں پتا کتنا ہے کیا ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ان سے. اور ادھر کیا کہتے تھے میاں صاحب کہ میرے بچے خود مختار ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. آپ ان سے جا کے سوال پوچھیں، ان سے سوال پوچھا ہارٹ ٹاک نے، تو ان کا کرایہ تو پاکستان سے آتا ہے. آپ کو بھی یاد کراتا ہوں، ذرا دیکھیں سنیں ایک باری کیا کہا. I mean, you'll be aware, for instance, that the flat that you're living in at the moment in Mayfair was actually named in the Pakistani paper, The News, last year as one of 4 which was illegally bought by your father through various Swiss and offshore companies. Well, these are things which, comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the courts and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm ring on a rent basis, which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from The Pakistan? money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father. Actually, we have a family business back in Pakistan, which is not being built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to But you live ask there. to. So it doesn't matter.
Don't I'm you not know earning. who I'm it's not earning. rented from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and who pays for the rents and who pays for my living. But would it interest you to know that the flat is apparently owned by two offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? I've got nothing to say about them. I'm absolutely ignorant. What can I say? Do you have doubts when you hear information like this? I mean, these aren't new allegations. As I said, these were in the Pakistani press last year. There are absolutely no new allegations. This has been happening for the last 2-3 years. But these haven't been answered, have they, these allegations? But these has to be challenged in the court. We don't want a media trial. अच्छा, वो जो होस्ट था उसने बड़ी तमीज़ से उसने पूछा, उसने कहा कि जी बात ये कि दो कंपनीज हैं, नेस्कॉल और नेल्सन, और इनकी एक पेरेंट कंपनी जो स्विट्ज़रलैंड में है, वो वहाँ से इनको कंट्रोल करती है, तो क्या ये आपके वालिद की कंपनीज हैं? तो ये फ़ौरन, इनको तो पाकिस्तानी मीडिया की आदत थी, मदद सराउंड की आदत थी, वहाँ इस बात की तो आदत ही थी, तो ये फ़ौरन कहते हैं भाई बात सुने, जिसको अगर शक है ना कि ऐसा कुछ है तो वो कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाए और जाके प्रूफ करा ले, क्योंकि उनको पता था उस कोर्ट भी इनकी जेब में थे, जज भी इनकी जेब में थे। आपको याद होगा मियाँ शहबाज शरीफ की फ़ोन कॉल्स भी लीक हुई एक चीफ जस्टिस के साथ, साबिक चीफ जस्टिस के साथ, और उनको बता रहे थे फैसला क्या देना, और वो आगे से कह रहे थे सर तस्लीम खम। पाकिस्तान में मियाँ साहब क्या कहते हैं आके सुप्रीम कोर्ट में या GIT के आगे, मेरे बेटे इंडिपेंडेंट हैं, वो उस वक्त भी काम कर रहे थे, उन्होंने उस वक्त काम से वो चीज़ें बनाई, आवाम को यहाँ पे धोखा दे रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। अब 1 साल के बाद ही बेगम कुलसूम नवाज़ ने गार्डियन में इंटरव्यू दे दिया, और गार्डियन को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये तो फ्लैट्स हमारी मिल्कियत है, उन्होंने मान लिया। लेकिन तब भी उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पैसा कहाँ से आया, जो इतने मिलियन पाउंड था वो बहरहाल आपने कहीं से तो लिया होगा ना, वो कैसे लिया ये वो बताना भूल गई। आपको पता है कि शरीफ ख़ानदान जो है ना यक ज़ुबान होकर झूठ बोलता है, और फिर इतना बोलता है कि फ़ौरन पकड़े भी जाते हैं, उनका झूठ सामने आता है, फिर उस झूठ को जस्टिफाई करने के लिए दोबारा झूठ बोला जाता है। एक भाई कहता है मेरा बाप तो जद्दी पुश्ती अमीर था, वो तो उसके अरबों के कारोबार थे, और दूसरा भाई असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर कहता मेरा बाप तो एक बहुत ही मजदूर था, मामूली आदमी था, उसने वहाँ से ये सब कुछ जोड़ के बनाया, और हम लोग को पता नहीं ये किसका जिक्र कर रहे हैं। अगर मियाँ शरीफ का जिक्र कर रहे हैं तो मैं नवाज़ शरीफ साहब की बात मानूँ कि मैं शहबाज शरीफ की बात मानूँ, ये तो आपने मुझे बताना है कि दोनों में से किसकी बात जो है वो एतबार के काबिल है, क्योंकि दोनों का स्क्रिप्ट एक नहीं है कम से कम। वो साहबजादी जो है वो क्या कहती हैं, आपको याद है कि जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया उनका जी लंदन को तो छोड़ दें, लंदन तो बड़ी दूर की बात है, भाई तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सुने ना ज़रा क्या कहती हैं, सुने ज़रा। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और फिर ये भी कहती हैं कि अगर है प्रॉपर्टी ना तो प्रूफ कर दें ज़रा, और प्रूफ करके लोगों को बाद में ताने देती नहीं, भाई अदालत चले जाओ ना, अदालत में साबित कर लो। तो बीबी अदालत ने ही साबित किया आपके वालिद मुजरिम हैं और ना अहल हैं इस मुल्क में कोई भी ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करने के लिए। अब ये मामला तो खुल गया, लेकिन जब असल कहानी क्या हुई कि जब शरीफ ख़ानदान को ये पता चला कि पैनामा पेपर्स आ गए हैं, पकड़े गए हैं, क्योंकि जो वो जर्नलिस्ट थे जो कर रहे थे सारा पैनामा का स्कैंडल जो अनफोल्ड कर रहे थे, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स की, उनको ख़त लिखे कि भाई आपके मतलब यही एलिगेशन है तो आपका हमें जवाब चाहिए ऑफिशियली इस पर। तो इनको पहले से पता चल गया था 2 महीने पहले कि अब ये खिचड़ी पक रही है, तो इन्होंने कहा कि इसको प्रीएम्प्ट करो। फ़ौरन ही किसी सियाने ने उनको राय दी और वो आगे दोबारा इंटरव्यू देने। अब दूसरे बेटे आए, इस बारी वो पहला बबलू बेटा नहीं आया, अब दूसरा डब्ल्यू बेटा आया। उसने आगे क्या कहा, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारी हैं, ये तो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये जो नाचीज़ आपके सामने बैठा है वही उसका चीफ एग्जेक्टिव है, और मेरी हमशीरा जो है वो उस ट्रस्ट की सरपरस्त आला है, जो ट्रस्ट इन सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, जो कहती थी ना कि मेरी लंदन में साबित कर दो, पाकिस्तान में साबित कर दो। वो हुआ क्या, उन्होंने क्या कहा भाई साहब ने, सुने ज़रा। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं
वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। आपको पूछने वाला है इनसे कि भाई माँ बाप, 2 भाई और 1 बेटी, पांचों का स्क्रिप्ट डिफरेंट है आपस में, पांचों की कोई बात नहीं एक दूसरे से मिलती। तब आज को मरियम नवाज जब जलसे में खड़े होकर झूठ बोल रही होती हैं और अभी मुल्तान के जलसे में थी, तो कहती है मैं यूसुफ रज़ा गिलानी से हमदर्दी करती, उनको निकाला गया। तो याद नहीं उनके वालिद क्या कहते थे? उस सुरे सरा उनके वालिद क्या कहते थे? अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो, अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उल्मा के मनसब पे आ जाओगे। सुना आपने? और ये मुल्तान का जलसा सुनाऊं दोबारा आपको कि उसमें मरियम ने क्या कहा, वो भी सुन लें। तो ये सवाल मैं आज मुल्तान के अपने गयूर अवाम के पास छोड़कर जा रही हूँ कि हमेशा ये सलूक आपके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्यों होता है? क्या कसूर था यूसुफ रज़ा गिलानी का? वाले साहब की बात दोबारा सुनाऊं कि याद हो गई आपको? ये भी याद करें कि वाले साहब भी काला कोट, काली पैंट और काली टाई पहन के सफ़ेद कमीज़ के साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़। वो मेमोगेट्स के केस भी तो आपको याद है ना, कि वो किसने कराने की कोशिश की थी। तो बेटी को ये नहीं पता था कि मेरा बाप ही क्लाइंट था, मौक्कल था, और वो यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाने के लिए सबसे आगे आगे था। अच्छा, गिलानी साहब को छोड़ दें, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या कहते थे? आज जिनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते। आज मरियम जो है, जो बेनज़ीर जिनकी आइडियल है गालिबन, मुझे उन्होंने कहा नहीं लेकिन मुझे लगता है कि उनकी आइडियल होंगी वो सारा उसी तरह बिहेव करती हैं। तो वो उनके वालिद बेनज़ीर के बारे में क्या कहते थे, वो भी ज़रा सुन लें। ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने ला के बैठा दिया है, और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और मैं आपको बता देता हूं, सुन लो मेरी बात। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनज़ीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी, और मैंने जो कहा है मैंने सच कहा, और मैं आज भी कहती हूँ मैंने मदद की थी। मैंने कहा मेरे दोस्तों मुझे बताओ, क्या नवाज शरीफ अब इसके ऊपर खामोश? कहती हैं सब कुछ, कहती हैं मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का बड़ा दुख है। एक्टिंग तो ख़त्म है भाई, यहाँ पे कमाल की एक्टिंग है। फांसी का बड़ा दुख है आपको? भाईजान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो ज़िया-उल हक़ के मज़ार पे खड़े होकर क्या कह रहे थे कि उनके भुट्टो और ज़िया तो दुश्मनी, और ज़िया ने तो फांसी लगाई भुट्टो को। तो ये तो अब सबको पता है कि उनका आपस में कितना को अच्छा ताल्लुक़ होगा, या उन ख़ानदानों का कितना ताल्लुक़ होगा। तो मियाँ साहब ने, जब मरियम ने यहाँ पे कहा कि भुट्टो की फांसी चढ़ने पे बड़ा मुझे दुख है, पहले आपको वो सुनाता हूँ और फिर आप सुने मियाँ साहब ने ज़िया की कब्र पे खड़े होकर क्या कहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ जाता है, और उसकी फांसी के बाद उसकी फांसी के बाद उसके घर वालों को, उसके खानदान को उसका जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। ये आलम हो चुका है क्योंकि सारा पैसा तो खा गया जरदारी, और जो आपका इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। और वहां आसिफ जरदारी के घोड़े जो है, एक 40-40 लाख रुपए का घोड़ा आज वहां पे सबल में घूम रहा है। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसने सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसमें उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौम की कदमों में निछावर करूंगा। ये वही जनरल ज़िया-उल हक़ है जो आर्मी जनरल था, और आर्मी जनरल की यूनिफॉर्म में ही उनकी शहादत हुई, उनका प्लेन क्रैश हुआ, सब कुछ हुआ। उनकी कब्र पे मियाँ साहब ये कह रहे थे। आज फौजी आमिर उनको बुरे लगते हैं, वो आमिर उनको बुरे लगते हैं जो उनको सेलेक्ट नहीं करते, जो उनको इलेक्ट नहीं कराते, जो उनको लेकर नहीं आते। कभी जनरल गुलाम जानी के ऊपर बात नहीं करेंगे, कभी जनरल ज़िया-उल हक़ के ऊपर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो उन लोगों के जहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और वो हार गए। आज एक नई खबर मुझे पता चली है, क्लोजिंग से पहले आपको बता दूं कि मरियम नवाज़ की ये तो प्रॉपर्टीज़ है ही हैं, और कैलिबरी क्वीन है। आपको याद ही है कैलिबरी फॉन्ट का कितना ड्रामा हुआ था।
لیکن آج مجھے کسی نے بتایا کہ مریم نواز کی اتنی پراپرٹیز ہیں برطانیہ میں جس کا کوئی پتہ نہیں، ابھی حساب لگا رہے ہیں لوگ، اور وہ ساری کی ساری مریم صفدر کے نام پہ ہے۔ یہاں پہ وہ مریم نواز شریف اپنا نام یوز کرتی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے مریم صفدر نام یوز کیا، اس لیے جب آپ مریم نواز شریف کے نام سے ڈھونڈیں گے تو شاید آپ کو پراپرٹی نہیں ملے۔ لیکن برطانیہ میں مقیم پاکستانی، آپ سے آج میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مریم صفدر کے نام سے پراپرٹی ڈھونڈیں اور مجھے بھی بتائیے گا ذرا، اور دیکھتے ہیں اب اور کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ جتنے بھی بولے جائیں گے میں سب پکڑ کے آپ کے سامنے لاؤں گا۔ پوچھے گا ہر اس سپورٹر سے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے کہ اب وہ کیا کہتا ہے، اس کو دکھائیں اور پوچھیں، دکھائیں اور پوچھیں، اور اس کلپ کو اتنا شیئر کریں کہ یہ کیلیبری فونٹ کوئن تک تو پہنچ جائے اور بار بار پہنچے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ عوام جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کا ریور نہیں ہے، وہ انسان ہے، سوچنے والے انسان ہے اور سوال کر رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب ہے مریم صفدر آپ کے پاس۔ اللہ حافظ۔